Okay, so hang on for a moment. So hello students, कैसे हो आप सब? I hope all of you are doing perfectly well and आप लोगों का जो preparation चल रहा है I hope बहुत अच्छे से चल रहा है. तो मैं कुछ important topics लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जैसे कि perturbation मान लो या JWKB approximation मान लो या identical particles मान लो या variational principle हो या जो हमारे बहुत मतलब अभी तो हर एक साल ही आ रहा है उसका क्वेश्चन जो स्कैटरिंग थ्योरी है, तो उसके ऊपर मेरा एक प्लान है कि हम लोग उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन या वेरियस टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स आते हैं यूजुअली वैसे टाइप्स के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो वैसे कुछ प्रॉब्लम्स लेके मैं आज आया हूँ आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए. सो आप लोग जितना जल्दी हो सके जुड़ जाओ और ये जो क्लास का लिंक है जस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो गेट कनेक्टेड. उससे पहले मैं बता दूं कि the super coaching has brought you an offer, a very good offer basically. So all the courses are available at only price 3015. The whole price was 13,999, but the whole cost has been reduced to 3015. I think this is a very golden opportunity for all of you people. So do grab it and use the promo code Sourav to get this offer. So without any further ado, let's move on. So today we're gonna solve questions from perturbation theory, are to be more specific, time-independent, non-degenerate perturbation theory. We're going to solve questions from time-independent, non-degenerate perturbation theory. So just let me write it down. We're going to solve questions from time-independent, non-degenerate perturbation theory. Perturbation theory. Time-independent, non-degenerate perturbation theory. Now let me tell you, there are three formulas which are important. एक तो है nth एनर्जी स्टेट का फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज एक्चुअली गिवन बाय unperturbed energy eigenfunction of nth state, perturbation, unperturbed energy eigenfunction of nth state. And of course, don't forget to make it normalized. Okay, so if you wish to do that, I can just also write it as psi n0 psi n0, but of course it will be normalized because it's an energy eigenstate. So this has to be there. Then second order correction to nth energy state, that is usually written as summation over n. But sir, m is never equals to n. Then I can write psi m0 hm psi n0 expectation mod square divided by e n0 minus e m0. And if I wish to write the first order correction to nth energy state, it would become equals to summation over n, but again m is never equals to n. I can write m is never equals to n. Then I can write psi m0 hp psi n0 divided by en0 minus em0, and here I can write psi m0. That's all. So this is all I can say about the formula of perturbation theory. जो चीज तुम लोगों को जरूरत है वो सारी चीज यहाँ पे दे दिया गया. अब शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ. तो जरा देखो यहाँ पे पहले प्रॉब्लम हम लोगों के पास क्या दिया गया है. क्वेश्चन में पूछा गया है that the ground state eigenfunction for the potential v of x is equals to minus del of x, where del of x is the Dirac delta function, is given by psi of x is equals to a into e to the power of minus alpha mod x, where a and alpha are constant. If the perturbation h dash is equals to bx square,
is applied, then the first order correction to the energy of the ground state will be equals to what? What is the first order correction to the energy of the ground state? That's what they have asked. What's the first order correction to the energy of the ground state? Basically ये जो question है ये CSIR June 14 का question. It's a question from CSIR June 14. तो बच्चे लोग जरा यहाँ पे देख लो कि हमें पता है कि if V of x is equals to जो पोटेंशियल है या माइनस a, V of x is equals to minus a into del of x, then हमारा जो वेव फंक्शन होता है एनर्जी आइगन स्टेट होता है that is psi n of x that is given by root over of ma by h cut into e to the power of or exponential of negative of ma by h cut square into mod h. That's what we know regarding this. Okay, and this is very important. I think most of all you people know this wave function, that root over of ma by h cut into exponential of negative of ma by h cut square into mod x. That's all. And what will be the energy eigenvalue? The energy eigenvalue, it is only one energy eigenvalue, so that is negative of m alpha square, not alpha. It's ma square divided by ma square divided by 2h cut square. Negative of ma square divided by 2h cut square. Negative of ma square by 2h cut square. Now let me tell you here, in this question, the potential is given to be minus del of x. Minus del of x means in our problem, v of x is equals to minus del of x. Therefore, a is equal to 1. So what should be my psi n of x? The unperturbed wave function, unperturbed energy. So psi n of x should be equal to, there is only one eigenfunction actually, so I don't have to put n because there is no n dependency. There is only one eigenfunction and one eigenvalue, energy eigenvalue. One energy eigenfunction, one energy eigenvalue. So that is actually is equals to root over of m divided by h cut into exponential of negative of m mod x divided by h cut square. E to the power of negative of m mod x divided by h cut square. Now what they have said now I have applied a perturbation h is equals to bx square. So what is the first order correction to ground state energy? Tell me the first order. There is only one energy state, तो इसका ground state first एक्सरे स्टेट बिल्कुल कुछ नहीं होता, सिर्फ एक एक्सरे स्टेट है. तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू ग्राउंड स्टेट will be equals to psi 0 hp. psi 0 डेफिनेटली वो नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में है, तो हम लोग अगर यहाँ पे लिखे तो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे अगर हम इसको लिखे तो क्या आ जाएगा? It will become actually equals to m by h cut square e to the power of negative of 2m mod x. This will be integration from minus infinity to plus infinity. M divided by h cut square to the power of negative of 2m mod x by h cut square, and hp equals to bx square into dx. That's all I can say. यहाँ पे हमारा hp क्या बोल दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमारा hp बोल दिया गया है bx square, so definitely I can just write it. And ये स्क्वायर करने के बाद इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2m mod x by h cut square, m by h cut square. Fine, that's all I can do. तो अगर ये चीज हमारे यहाँ पे है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दो, बट पहले देख लो कि ये एक इवन फंक्शन है. अगर इवन फंक्शन है और प्लस माइनस इंफिनिटी पे इंटीग्रेशन है, प्लस माइनस सेम लिमिट पे इंटीग्रेशन, सो आई कैन राइट इट एज लाइक m डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर, बाहर में एक 2 भी दे देते हैं और इसको लिख लेते हैं 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा b भी बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर इनटू e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ 2mx डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर, क्योंकि 0 टू इंफिनिटी में mod x बन जाएगा इनटू dx. अब ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है. ये हो जाता है 2mb डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली x टू द पावर ऑफ m इनटू e टू द पावर ऑफ, इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, x टू द पावर ऑफ m इनटू e टू द पावर ऑफ माइनस bx टू द पावर ऑफ n dx. इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी का देना आंसर आता है 1 by n गामा m plus 1 divided by n divided by b to the power of m plus 1 divided by n. तो भाई लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ?
यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1 बाई यहाँ पे x टू द पावर 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 1 गामा m क्या है 2 सो 2 प्लस 1 बाई 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे b क्या है 2m बाई h कट स्क्वायर तो 2m बाई h कट स्क्वायर टू द पावर ऑफ 2 plus 1 means 3 by 1 that is 3 that's all I can write so 2 plus 1 equals to 3 so gamma 3 is equals to 2 factorial basically so 2 factorial is equals to I can say 2 factorial equals to 2 so 2 into 2 is 4 4m b divided by h cut square यहाँ पे है 8m cube 8m cube divided by h cut to the power of 6 तो यहाँ से इसको काट दूंगा तो इसलिए क्या आ जाएगा h cut से 6 काटूंगा तो h cut to the power of 4 आ जाएगा I can simply write it as 4 से 8 को काट दूंगा तो 2 आ जाएगा m से इस m काट दूंगा तो m स्क्वायर आ जाएगा तो b into h cut to the power of 4 divided by 2 into m square that's all I can do अब देखो क्वेश्चन में उन लोगों ने जो आंसर दिया है ये हमारा बेसिकली आंसर आ गया है उन लोगों ने जो आंसर दिया है वो आंसर अल्फा के फॉर्म में है बेटा अल्फा यहाँ पे क्या है उन लोगों ने साइन ऑफ एक्स को लिखा है a into the power of minus alpha mod x अगर इसके साथ इसका कंपैरिजन करा जाए तो जरा मुझे यहाँ से बता दो कि उन लोगों के साथ हमारे फॉर्मूला का कंपेयर करके कैपिटल ए का वैल्यू क्या आता है रूट ओवर ऑफ m डिवाइडेड बाय h कट क्योंकि a तो हमारा 1 है और सर अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से देखो बेटा अल्फा इनटू मॉड ऑफ x नेगेटिव अल्फा इनटू मॉड ऑफ x तो सर अल्फा हमारा आ जाएगा a में डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर बट a तो सर 1 तो m डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर h का स्क्वायर तो अल्फा अगर m बाय h का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है बेसिकली यहाँ पे है मेरा m स्क्वायर बाय h का स्क्वायर टू पावर 4 मतलब m बाय h का स्क्वायर का होल स्क्वायर तो b बाय 2 अल्फा स्क्वायर दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू b बाय 2 अल्फा स्क्वायर तो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट टेल मी option D is correct. B by 2 alpha square option D is correct. बताओ सही है कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत अगर ये वाला क्वेश्चन हो गया है तो इस क्वेश्चन में आ जाओ पहले यहाँ पे बता दो अगर इस क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो अगर कोई भी बच्चे को दिक्कत हुआ है तो डेफिनेटली आई कैन सॉल्व आई कैन हेल्प फॉर देम टेल अगर दिक्कत नहीं है तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि हाइड्रोजन एटम इज सब्जेक्टेड टू द परटर्बेशन v perturbation is equals to epsilon into cos of 2r divided by a0 where a0 is the Bohr radius the change in the ground state energy to first order in epsilon क्या होगा change in ground state energy to first order in epsilon the change in ground state energy to first order in epsilon epsilon के first order में ground state की energy क्या होगा बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये लिख लेना चाहिए कि ओके सो बेसिकली ये क्वेश्चन भी तुम्हारे सीएसआर का क्वेश्चन है ये दिसंबर 15 में आया था सीएसआईआर दिसंबर 15 का क्वेश्चन है देखो हाइड्रोजन एटम का जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है दैट इज psi 10 of r that is actually given by r vector is actually given by 1 divided by root over of pi a cube to the power of negative of r by a 1 divided by root over of pi a cube into the power negative r by a जहाँ पे a क्या है हमारा a is Bohr radius अच्छा भाई लोग जरा यहाँ पे बताओ ग्राउंड स्टेट एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर कनेक्शन निकालने के लिए बोला गया है परटर्बेशन इज एप्सिलॉन cos of 2r by a यहाँ पे a लिखते हैं ठीक है a नॉट नहीं लिखते तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इज इक्वल्स टू psi 10 hp psi 10 वेरी गुड यहाँ पे आ जाएगा हमारा if I wish to write it down देख 1 by pi a cube e to the power of minus 2r by a integration 1 by pi a cube to the power of minus 2 into r divided by a और हमारा जो परटर्बेशन था दैट इज epsilon cos 2r by a epsilon cos 2r by a epsilon cos of 2r by a into dv
तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, बेसिकली यहाँ पे सारे आर के फॉर्म में है, तो ये आर को 0 टू इन्फिनिटी कर देते हैं, थीटा और फाई इंटीग्रेशन करके 4 पाई आता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा e टू द पावर ऑफ -2r डिवाइडेड बाई a बाई पाई a क्यूब, एप्सिलॉन को यहाँ पे रखते हैं cos ऑफ 2r बाई a 4 पाई r स्क्वायर dr। बोलते भाई क्या हो जाएगा? देख यहाँ के पाई से यहाँ का एक पाई काट दूंगा, 4 को बाहर लेके आ जाओ, 4 एप्सिलॉन बाई a क्यूब को बाहर लेके आ जाओ, 4 एप्सिलॉन बाई a क्यूब हमारा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पे e to the power of -2r by a है, यहाँ पे cos of 2r by a। I think it's very easy to understand कि what we have to do, cos of 2r by a into e to the power of -2r by a, और यहाँ पे हमारा r स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है सॉल्व करना। अगर तुम लोग चाहो cos को तोड़ सकते हो इन द फॉर्म ऑफ e to the power, तो मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ, -2r डिवाइडेड बाई a cos of 2r by a, 4 पाई तो चला गया है, r square is still there, r square, that's all I can do। अब तुम लोग जरा यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो ये cos 2r by a है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं e to the power of like basically we know that cos theta plus i sin theta is e to the power of i theta and cos theta minus i sin theta is e to the power of minus i theta, तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा? तो I can write 4 epsilon by a cube, 4 epsilon by a cube 0 to infinity e to the power of -2r by a to the power of -2r divided by a, and within bracket I can write e to the power of I into 2r by a plus e to the power of minus I into 2r divided by a whole divided by 2, तो बाहर में मैं 2 को लेके आ गया। ठीक है, तो दैट इज माय cos थीटा, cos of 2r by a और r स्क्वायर into dr। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ अगर इसका एडिशन करवाऊंगा तो 4 एप्सिलॉन बाई 2 a क्यूब, यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, पहला इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, r स्क्वायर into e to the power of, देखो I can take 2r by a common and it will just become equals to I minus 1, right? -1 plus I minus 1 to the power of I minus 1 into 2r by a दिया प्लस 0 टू इन्फिनिटी, ये वाला क्या बन जाएगा भाई, r स्क्वायर तो बाहर रहेगा ही, और e टू द पावर ऑफ minus I minus 1 negative of I plus 1, negative of I plus 1 2r by a into d। अब जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व कर लूंगा तो 4 एप्सिलॉन बाई 2a क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे है देखो basically r square है and e to the power of, I can take minus sign common, it will become 1 minus I। If I take minus sign common, I just have to put it minus sign common, and I can write it as 1 minus e to the power of negative of bx x square। This would be the first integration will be 2 factorial divided by, what's my b here, 1 minus I into 2 by a to the power of 3 plus यहाँ पे जरा देखना, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 2 फैक्टोरियल अगेन into 1 plus I into 2 by a to the power of 3। तो बेसिकली सेम चीज यहाँ पे आ रहा है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, इस 2 को बाहर लेके इस 2 को काट सकते हैं, तो 4 एप्सिलॉन बाई a क्यूब इनटू यहाँ पे जो चीज आया है दैट इज 2 बाई a इनटू 1 माइनस I। तो इस 2 बाई a को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसलिए ये आता है 8 बाई a क्यूब
तो जो ऊपर जाके हो जाएगा ए क्यूब बाई 8, यहाँ से भी 8 बाई क्यूब ऊपर जाके ए क्यूब बाई 8, तो वो बाहर ले सकता हूँ, तो ए क्यूब बाई 8 से ए क्यूब को काट के नीचे 8 रहेगा, तो दैट विल जस्ट बिकम इक्वल्स टू ए क्यूब बाई 8, तो एप्सिलॉन बाई 2 बिकम इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पे बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई क्यूब प्लस 1 divided by 1 plus I cube. That's all I can get here. So, and this thing will become equals to A B अगर multiply करूँगा तो 1 minus I square whole cube. 1 minus I 1 plus 1 minus I square whole cube. इससे इसको करूँगा तो 1 plus I cube minus 1 minus I cube. बाहर में epsilon by 2. Now I can do this. So basically when I'm writing 1 plus I cube, I'm having 1 plus I cube plus 3 1 square I plus 3I 3 1 I square, negative of 1 cube, minus है तो minus I cube and then minus 3 1 square I, then plus 3 1 into I square. That's all I'm gonna get. 1 है यहाँ पे 1 है तो इसके साथ ये कट जाएगा. यहाँ पे देखो बेसिकली आई क्यूब है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आई क्यूब है, तो 2 आई क्यूब बन जाएगा, तो ये गया 2 आई क्यूब बन गया. अब 3 1 स्क्वायर आई है, यहाँ पे माइनस 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 स्क्वायर आई. ओके, सो 3 आई दैट इज प्लस 6 आई, यहाँ पे 3 1 आई स्क्वायर माइनस 3 1 आई स्क्वायर. वेरी गुड, ये वाला कैंसिल हो जाएगा. 2 आई क्यूब प्लस 6 आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर इनटू आई. हैंग ऑन, कहीं भी शायद गलत हो रहा है, आई रहने की बात ही नहीं है, आई शुडंट बी है, क्योंकि जो आ रहा है हमारा वो हमारा एनर्जी आइगन वैल्यू ही आ रहा है, करेक्शन आ रहा है, तो डेफिनेटली दैट शुड बी रियल नंबर, इट कैन नॉट बी एन इमेजिनरी नंबर. तो कहां पे गलती हुआ एक बार देखो भाई. ओके, सो बेसिकली हमें बोला गया है ग्राउंड स्टेट का निकालने के लिए, है देखो बोला गया हाइड्रोजन एटम सब्जेक्ट टू द परटर्बेशन चेंज इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी टू फर्स्ट ऑर्डर. वेरी गुड. सो जो परटर्बेशन है एप्सिलॉन इनटू cos 2r by a. अच्छा, ग्राउंड स्टेट है 1 by pi a क्यूब टू द पावर ऑफ माइनस r by a, pi क्यूब टू द पावर ऑफ माइनस r by a, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 by pi क्यूब टू द पावर ऑफ माइनस 2r by a गुड एप्सिलॉन इनटू cos of 2r by a इनटू d. वेरी गुड. यहाँ से एप्सिलॉन पाई क्यूब को मैंने बाहर ले लिया, देखिए एप्सिलॉन पाई क्यूब को मैंने बाहर ले लिया. अच्छा, यहाँ पे dv के अंदर 4 पाई r स्क्वायर दिया है, तो यहाँ से पाई से ये वाला पाई कट गया, यहाँ पे 4 है, एप्सिलॉन है a क्यूब है, 4 एप्सिलॉन a क्यूब. वेरी गुड. टू द पावर माइनस 2r by a cos of 2r by a r स्क्वायर दिया. cos 2r by a को मैंने तोड़ा है, I have written down cos 2r by a as cos theta is equals to the power of I theta plus e to the power of minus I theta, है ना. That is equal to twice of cos theta divided by 2 करके यहाँ से 2 लेके आते हैं. ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा. First two terms if I just multiply, so they will get added, so we get minus 1 plus I 1 minus I 2r by a dr r square plus यहाँ से आ रहा है r square into e to the power of negative of 1 plus I. yes, इसके साथ अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो डेफिनेटली -1 माइनस आई 2r by a तो कॉमन, तो नेगेटिव कॉमन तो 1 प्लस आई 2r by a इन दिया. गुड. अब यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी में इंटीग्रेशन हो रहा है, r स्क्वायर की पावर कुछ नहीं दिया, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाला है, दैट इज 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई 2 by a to the power of n plus 2. फाइन, तो 3 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 फैक्टर डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो चीज आया है
It is 1 minus I plus 1 divided by 1 plus I. तो इसको लिखा जा सकता है यहाँ पे 2 by a क्यूब मतलब 8 by a क्यूब था तो 8 क्यूब by 8 था तो क्यूब कैंसिल ये कैंसिल तो एप्सिलॉन by 2 आया है 1 minus 1 by 2 तो ये 1 minus I square whole cube 1 plus I cube minus 1 minus I cube 1 plus I cube करके आ रहा है 1 plus I cube plus 3 1 square into I plus 3 1 into I square minus 1 minus I cube minus 3 1 square into I plus 3 1 into I square 3 I square cancel 1 1 cancel I cube plus I cube तो 2 I cube यहाँ पे 3I plus 3x plus 6I I cube I इसका मतलब -1 तो minus 2I plus 6I तो 4I आता है there is something missing कहीं भी प्रिंटिंग मिस्टेक है नहीं तो कुछ है तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं होना चाहिए I think somewhere there is a printing mistake. अच्छा एक सेकंड रुको hang on ठीक है इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को देखूंगा इसलिए क्या आ रहा है इसका चेंज इन द ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट ऑर्डर इन सेल कहीं पे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आई तो आना चाहिए epsilon cos 2 by a naught 1 divided root over pi cube to the power of psi by a जैसे कि psi star psi करूंगा तो 1 by pi a cube हो जाएगा e to the power of minus 2 by a हो जाएगा यहाँ पे epsilon cos theta मतलब e to the power of I theta plus e to the power of minus I theta क्या आता है e to the power of मतलब cos theta plus I sin theta cos theta minus I sin theta 2 cos नीचे 2 आ जाएगा that thing is fine so I'm getting epsilon into 2r by a into 4 pi r squared dr epsilon into 2 to the power of negative 2r by a divided by pi a cube इंटीग्रेशन हो रहा है ऑल स्पेस में तो पहले 4 पाई को करके रख दिया है तो इंटीग्रेशन आर में 0 टू इंफिनिटी होगा अब यहाँ से पाई को काट दिया है 4 नीचे a क्यूब ऊपर एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन a क्यूब हो गया e to the power of minus 2r by a cos of 2r by a into r squared dr it's good
cos 2r by a can be written as e to the power of I into 2r by a plus e to the power of minus I into 2r divided by a r square dr. This is r square to the power of minus 1 plus I, so minus 1 into 1 minus I into 2r by a dr plus r square into e to the power of इसके साथ इस नेगेटिव कॉमन चला जा रहा है तो 1 plus I plus into 2r divided by dr. Now r square dr is equals to 1 divided by n into gamma 3 divided by n to the power of 3. जहाँ पे हमारे पास है ये चीज है 1 minus I 2 by a to 1 plus I 2 divided by a into whole cube. जैसे होल क्यूब करूंगा तो डेफिनेटली a क्यूब डिवाइडेड बाय 8 तो बाहर आके तो डेफिनेटली 4 by 2 कर देगा, यहाँ से 2 भी बाहर आ जाएगा, काट देगा, एप्सिलॉन by 2 यहाँ पे है। तो ऑल आई एम गेटिंग इज एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 ऊपर में आ रहा है हमारा I स्क्वायर वाला जो है वो सबट्रैक्ट करेंगे I क्यूब वाला जो है, इसलिए I क्यूब दैट इज 2I क्यूब। नाउ I क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 2I और वहाँ पे प्लस 4I divided by 1 I square minus 1 to 2 cube that's 8. That's all I'm gonna get. So यहाँ पे मेरा आ रहा है I epsilon by 4, but that's a wrong thing because जो एनर्जी करेक्शन है वो कभी भी इमेजिनरी नहीं आ सकता। एनर्जी करेक्शन हैज टू बी अ रियल नंबर। आई थिंक जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है उस क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है या कहीं पे दिक्कत हो रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम में गलती आ रही है। कहीं पे अगर एक आई हो जाता तो ये प्रॉब्लम का वो सही होता। I think somewhere there is a printing mistake. Somewhere there is a printing mistake. कोई नहीं, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे बोला गया है एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ अ पार्टिकल इन द पोटेंशियल v of x is half omega square x square minus ax are what are the energy eigen values। तो बेसिकली अगर हमारे पास पता है, इस क्वेश्चन को तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो पर्टर्बेशन से सॉल्व कर सकते हो, एक विदाउट पर्टर्बेशन एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं दो ही तरीके में दिखा देता हूँ। तो एक तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ फर्स्ट मेथड, मेथड 1। वो वाला क्वेश्चन को बाद में देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, यहाँ पे देखते भाई क्या बोला गया है, v of x हाफ ओमेगा स्क्वायर माइनस x। तो अगर हम लोग करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व, दैट जो हैमिल्टोनियन है हमारा दैट इज p स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a into x। तो इस हैमिल्टोनियन को बेसिकली यहाँ तक के लिए हैमिल्टोनियन मेरा नोन है, उसके लिए सॉल्यूशन पता है, बट ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसके लिए मुझे कुछ नहीं पता। तो इस टर्म के लिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जरा v of x को अगर हम लोग लिखे तो वो आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ax। तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं बाय डूइंग दिस। इसको लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, मतलब मतलब आ जाएगा रूट ओवर ऑफ n बाय 2 ओमेगा इनटू x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो आ रहा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर, वेरी गुड। देन माइनस 2 into root over of m by 2 ओमेगा x लिख दिया है। तो ये हमारा a हो गया। अब यहाँ से देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ से ऑलरेडी x है तो x आ गया है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा a है तो वो a मुझे लाना है, तो वहाँ पे एक a रख दिया मैंने। इस 2 को काटना है, यहाँ से देखो, यहाँ से करोगे रूट 2 से इसको काटोगे तो यहाँ पे ऊपर में एक रूट 2 आएगा, नीचे एक रूट 2 मेरे को लाना है, नीचे एक रूट 2 लाना है, तो वो 2 कट गया। ऊपर में एक रूट m है तो मुझे यहाँ पे नीचे एक रूट m भी लाना है, रूट m कट गया। यहाँ पे एक ओमेगा है तो समय को काटने के लिए यहाँ पे एक ओमेगा लाना है, तो ओमेगा कट गया, यहाँ पे 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो
रूट टू करके टू से टू कट गया, रूट एम से रूट एम कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स के बच रहा है, एक्स इंटू ए नेगेटिव, वेरी गुड। तो टू इंटू, अच्छा यहाँ से रूट एम ओमेगा एक्स तक तो हमारा ए था, तो बी क्या है, ए डिवाइडेड बाई ए बाई ओमेगा इंटू रूट ओवर ऑफ टू, ए बाई ओमेगा इंटू रूट ओवर ऑफ टू। ये हुआ टू ए बी। तो यहाँ पे जरा देख क्या क्या कट रहा है, रूट एम से रूट एम कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, ए एक्स हो गया है, यहाँ पे रूट टू है, यहाँ पे भी एक रूट टू है, तो टू होकर ये टू कट जाएगा, प्लस हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर। हमने यही टर्म एक्स्ट्रा लिखा था, तो इस टर्म को माइनस से काट दिया। तो जैसे हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इन द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। I can just write it down as a square minus 2ab plus b square. So I can write down this term as a minus b square. A क्या है हमारा, root over of m by 2 omega x, a minus b, that is a divided by omega into root over of 2m, a minus b square negative of a square by 2m omega square, a minus b square, ठीक है। I can write it as like this way. अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हम लोग हाफ m एंड ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, if I take common half m omega square from this part, so what it will provide me, this will give me, अच्छा यहाँ पे तो 1/√2 है ही दोनों में, तो बाहर तो ऐसे ही हाफ आ गया, हाफ रूट एम को अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे रूट एम के लिए तुम्हारा बाहर जैसे आएगा तो एम आ जाएगा, और ओमेगा को कॉमन ले रहे हैं तो बाहर आते ही ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अंदर में क्या पड़ा, रूट एम ले लिया बाहर, ओमेगा ले लिया बाहर, रूट टू ले लिया बाहर, तो सिर्फ एक्स पड़ा रहा, माइनस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट एम था नहीं ऊपर में, तो ऊपर में रूट एम, नीचे रूट एम मल्टीप्लाई करो तो नीचे एम हो जाएगा, रूट टू था, रूट टू को बाहर ले लिया, ओमेगा ऊपर में था नहीं, तो ऊपर में ओमेगा मल्टीप्लाई करो, नीचे ओमेगा मल्टीप्लाई करो, नीचे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई एम ओमेगा स्क्वायर, बाकी चीज तो मैंने कॉमन ले लिया, रूट टू कॉमन ले लिया तो रूट एम ओमेगा पड़ा रहा, बट उसको एम ओमेगा स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर। अब सर देखो यहाँ पे जो टर्म आया है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि लेट x माइनस ए बाई एम ओमेगा स्क्वायर इज माई वाई, अगर ये मेरा y है तो इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, या इसको y ना लिख के x डैश भी लिख सकते हैं, या y लिख सकते हैं, हाफ ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे जस्ट बिकॉज यू नो दैट y इक्वल्स टू दिस, तो dy इज बेसिकली माय dx, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम्हारा हैमिल्टोनियन फिर से क्या आ जाएगा, न्यू वाला जो हैमिल्टोनियन है नेगेटिव ऑफ h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m d2 dy2 प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा कौन सा वाला टर्म, माइनस ए स्क्वायर बाई टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोगों को पता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म कांस्टेंट हैमिल्टन के साथ ऐड होता है तो जो एनर्जी आइगन वैल्यूज हो जाते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ अनपर्टर्ब प्लस दैट एक्स्ट्रा टर्म प्लस दैट कांस्टेंट टर्म, दैट इज माइनस ए स्क्वायर बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा सर बताओ यहाँ पे कि EM0 मतलब इस टर्म के लिए एनर्जी क्या होता है, आइगन वैल्यू n प्लस हाफ h कट ओमेगा माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m।
That's one. Minus a square by 2m. This is the correct option, option A. अगर इसी प्रॉब्लम को एक दूसरे मेथड से करना चाहिए, ये रहा परफेक्ट एग्जैक्ट मेथड जिससे हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिला, हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया। दूसरा एक मेथड है जो पर्टर्बेशन थ्योरी, जहां पे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। मेथड 2 बाय पर्टर्बेशन थ्योरी। पर्टर्बेशन थ्योरी से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? बताओ। इस प्रॉब्लम को हम लोग पर्टर्बेशन थ्योरी से कैसे सॉल्व करेंगे? जरा देख लेते हैं कि हमारे पास जो अनपर्टर्ब स्टेट होते हैं psi n 0, उसको तो हम लोग यूजुअली n लिखते हैं फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाले तो वो हो जाएगा n, पर्टर्बेशन जो दिया गया है दैट इज -ax फिर n, माइनस के बाहर आ जाएगा nxn, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के बताए x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन nth एनर्जी स्टेट इज ऑलवेज 0, तो ये 0। सेकंड ऑर्डर करेक्शन क्या आ जाएगा? 2 e n2, हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखेंगे en2 क्या आ जाएगा सेकंड ऑर्डर करेक्शन? सर सेकंड ऑर्डर करेक्शन यहाँ पे आ जाएगा हमारा, या उस पेज से भी शुरू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। en2 हमारा आ जाएगा सेकंड ऑर्डर करेक्शन इज summation over n, but n is never equals to n, फिर mod of expectation of m hp n square divided by e n0 minus e m0, e n0 minus e m0, e n0 minus e m0, that's all I can say। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को x का वैल्यू लिखना है। तो भाई x कैप जो ऑपरेटर है वो क्या आ जाता है? रूट ओवर ऑफ h कट बाय 2 नीचे m ओमेगा a डैगर प्लस ये हमारा x कैप, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे पुट कर दे तो रूट ओवर ऑफ h कट बाय 2 ओमेगा बाहर चला जाएगा, और देख यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक hp में वो भी तो है, hp इक्वल्स टू हमारा -ax, है ना, -x। तो माइनस ए है हमारे यहाँ पे, तो माइनस ए इंटू रूट ओवर ऑफ h कट बाय 2 ओमेगा बाहर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए इंटू रूट ओवर ऑफ h कट बाय 2m ओमेगा, ये बाहर चला गया, समेशन ओवर n, बट n is never equals to n, then I can write mod of m a dagger, mod of m a dagger n plus mod of m a cap n, इस पूरे चीज का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय en0 minus em0, that's all I can do। that's all I can do। अब अगर a dagger भाई हमारा n के ऊपर ऑपरेट करेगा तो क्या देगा? a dagger n के ऊपर ऑपरेट करके देगा रूट ओवर ऑफ n प्लस 1 इंटू k 10 प्लस 1, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस a इंटू रूट ओवर ऑफ h कट बाय 2m ओमेगा summation over n, but n is never equals to n। अच्छा, अगर वो ऑपरेट कर रहा है तो क्या देगा ऊपर में बता? रूट ओवर ऑफ n प्लस 1 इंटू यहाँ पे k10, यहाँ पे k10 प्लस 1, है ना। एटा का अगर ऑपरेट कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। ये अगर ऑपरेट रूट 10 इंटू k10 माइनस 1 प्लस रूट 10 इंटू k10 minus 1 mod square en0 minus m0, that's all I can say।
अगर ये चीज हमें पता है तो अब तो प्रॉब्लम आसान हो गया। तो जब तुम ये समेशन कर रहे हो तो m का वैल्यू सब कुछ होगा, बट m कभी n नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पे n का वैल्यू चल रहा है तो देख ये वाला समेशन कब सर्वाइव करेगा, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, हैंग ऑन, ये n था, ये और ये दोनों ही m थे। तो m का वैल्यू जब हमारा n+1 होगा तभी ये सर्वाइव करेगा। तो m का वैल्यू 0 1 2 3 करते करते जब n+1 होगा तब ये सर्वाइव करेगा। जब m n+1 होगा तब ये n+1 n-1 ये वाला समेशन सर्वाइव नहीं करेगा, ये वाला क्या इनर प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं करेगा। तो नेगेटिव ऑफ a into root over of h cut by 2m ओमेगा, जब ये सर्वाइव करे तब ये सर्वाइव नहीं करेगा। तब m का वैल्यू n+1 है तो ये आ रहा है n+1 en0 minus en+1 0 प्लस जब हमारा m का वैल्यू n-1 है तब ये वाला इनर प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं करेगा, ये वाला इनर प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा। तो ये हो जाएगा √10 mod square en minus en-1 0। अच्छा en क्या है, n प्लस हाफ h कट ओमेगा नेगेटिव ऑफ, ये है n प्लस हाफ, ये नेगेटिव ऑफ n+1 प्लस हाफ, तो माइनस n, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस h कट ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा n-1, तो दिस इज n प्लस हाफ माइनस n प्लस 1 प्लस हाफ, यहाँ पे n प्लस हाफ माइनस n-1 प्लस हाफ, तो भाई n प्लस हाफ माइनस n माइनस हाफ कट जाएगा, तो माइनस h कट ओमेगा रहेगा। इसके लिए रहेगा n माइनस कट गया, हाफ माइनस हाफ कट जाएगा, प्लस h कट ओमेगा। तो n+1 minus h कट ओमेगा n h कट ओमेगा, this thing into the power of h कट by 2m ओमेगा। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे जो था, यहाँ पे देखो बाहर एक मॉड स्क्वायर था, है ना भाई, देख बाहर मॉड स्क्वायर था। तो अगर x hp में यहाँ पे a x है तो x का अगर ये टर्म है, इस टर्म को अगर इस मॉड्स के बाहर लाऊंगा तो स्क्वायर रूट ही बाहर आएगा ना, तो यहाँ पे ये रूट में ही रहेगा। और यहाँ पे जो ये तुम्हारा hp में a था ये भी a स्क्वायर बन जाएगा, ये a स्क्वायर बन जाएगा, रूट नहीं रहेगा, a स्क्वायर बन जाएगा, ये रूट नहीं रहेगा। बड़ी अच्छी बात, तो यहाँ पे रूट नहीं है और यहाँ पे a स्क्वायर, एंड डेफिनेटली ये माइनस साइन भी नहीं आएगा क्योंकि मॉड के बाहर आ रहा है तो माइनस साइन नहीं होगा। चलो काम खत्म लगभग लगभग। तो नीचे h कट ओमेगा है, ऊपर में क्या है n-1, तो ये कट के नेगेटिव ऑफ h कट ओमेगा, ओमेगा इनटू माइनस h कट ओमेगा, और I'm gonna get h कट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर बाई 2n ओमेगा, दैट इज बेसिकली माय सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो हमारा जो टोटल एनर्जी लिख सकते हैं अभी के लिए, न्यू जो टोटल एनर्जी है, दैट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी प्लस दैट इज माय ओल्ड अनपार्टेड एनर्जी प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन प्लस सेकंड ऑर्डर करेक्शन, जो मेरा क्या आ जाएगा n प्लस हाफ h कट ओमेगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन 0 है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन माइनस a स्क्वायर बाय 2n। देख तो भाई कौन सा वाला सही होगा, माइनस a स्क्वायर बाय 2n ओमेगा n प्लस h, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही रहेगा। आज यहाँ तक रहने देते हैं, वो वाला क्वेश्चन मैं एक बार देखूंगा, देखने के बाद मैं फिर से उसके ऊपर चर्चा करूंगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। चलो मैं क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ। बाय बाय।